जी हाँ जी, लिंक आ गया है, मोहम्मद हमजा ने भेज दिया है, थैंक यू सो मच। Okay, let's start revision. Unit number 5, which is mineral resources. Mineral resources, we are dividing this unit into 3 subheadings. A is minerals, any formation of minerals. Minerals are formed through different ways. अब यहाँ पर part A is divided under formation of minerals. Part B is mining and economic development. Part C is problems of mining. So when we are talking about the formation of minerals, it means that we are discussing the methods how minerals are formed, or processes how minerals are formed. Number 1 is hot magma, any through hot magma. Number 2 is evaporation of silica bearing water. And number 3 is after break of volcanic rocks. So 3 processes are made for the formation of minerals. Then comes on mining process. We are using 2 mining methods here, open cast mining and then underground mining. Underground mining is further dividing under 2 subheading, which is adit mining and shaft mining. Then comes on next, which are the types of minerals which are divided under metallic minerals and non-metallic minerals. We are going to list the metallic minerals which are important according to exam point of view. These are iron ore, copper, chromite, manganese, gold, and silver. Then comes on non-metallic minerals, which are coal, sulfur, rock salt, gypsum, limestone, marble, and clays. अब इसके ऊपर जो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली इसके यूजेस के हवाले से होती हैं, यानी यूजेस ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स. Sometimes examiner list out some minerals and ask that write 3 uses of, for example, copper, or 3 uses of gold or iron ore. So you have to give your answer only in bold point. तो इसके अंदर आपको आपकी बुक के अंदर एक फिगर बनाकर दिया हुआ है uses of metallic and non-metallic minerals का, तो you can consult that figure and easily find out 3 uses, because more than 3 uses are given there. फिर एक और क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछा जाता है which is related to comparison of metallic and non-metallic minerals. Again, your answer is given in your book, which is given in a figure. तो वो भी आप वहां से देखकर उसको आंसर कर सकते हैं. Limestone के हवाले से, because a different method is used for the extraction of limestone, which is called quarrying, तो यहाँ इसके हवाले से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है. Then comes on next subtopic, which is mining and economic development, because we all know that mining resources are working for the economic development. So when we see here, so we can enlist with the reference of economic development, industrial uses of mining, then agricultural uses, right? And it also provide employment as well. So इसका मतलब ये होगा कि जो mining हमारे resources हैं, they are supporting the industrial development as well as agricultural development. इसके साथ ही साथ it also putting their role in the development of remote areas and generation of electricity as well. So all these factors increase our GDP as well. इसके बाद हम अगर बात करें तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं which is name of organizations.
Three prominent organizations I have listed here, yani Geographical Survey of Pakistan, and then Pakistan Mineral Corporation. After that, Gemstone Corporation of Pakistan, right? Then we will talk about the third subtopic, which is problems of mining, right? Problems of mining. जी बेटा, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग को हम यहाँ पर जी प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग के लिए हम यहाँ देखते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंस एंड देन टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आफ्टर दैट inaccessible mineral deposits and low priority of government policies, according to government policies. After that, we will discuss the effects of mining. Effects of mining के अंदर three important effects are: number one is air pollution, number two is noise pollution, and number three water pollution. After discussing effects, we must enlist the protective measures to control all these problems, which are special precautionary measures, yani fill depressions. Number two is proper facilities for miners, and number three is water treatment plants. Then at the end you will find a topic which is sustainable development, और इसके ऊपर आपको 6 mark question पूछा जाता है, जो which must be a part of every question, which is related to application of science and technology and strictly checked of discharge of toxic substances. So all these topics are included in chapter number 5, which are mineral resources. इसको डिवाइड करने का मकसद ये था क्योंकि ये डिफिकल्ट चैप्टर है कि अगर आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर लेंगे तो इट मस्ट बी इजियर फॉर यू टू कोप विद द एग्जाम रिक्वायरमेंट. इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको मैं आपके साथ देख लेती हूँ. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज यूनिट नंबर 6 and its name is fishing industry. ये इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक आपका इजी टॉपिक है और इसके अंदर डिटेल्स कम है और इसलिए मोस्टली इसको कवर करना बहुत इजी हो जाता है. इसको भी अगेन मैंने डिवाइड कर दिया है सब टॉपिक्स के अंदर, सो यू कैन फोकस ऑन दीज सब टॉपिक्स. A is types of fishing, B is types of marine fish catch, then C is related to government efforts to develop fisheries. B के बाद C is types of inland fish catch and D is government efforts to develop fisheries. So सबसे पहले इसके अंदर we will discuss the types of fishing. You all know that there are two types of fishing. Number one is marine fishing, which is practiced in the sea, and number two is inland fishing, which is practiced on fish farms. थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, अजान के बाद मैं अपना आपके साथ लेसन दोबारा से कंटिन्यू करूंगी.
जी, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। Yes, inland fishing, which is practiced on lakes or dams or barrages or ponds. Then we will discuss here marine fishing. के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि marine fishing is practiced on coastal line. Coastal line के अंदर we have Sin Coast and Micran Coast. Sin Coast share is 30% and Micran Coast share is 70%. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फिशिंग सेंटर्स हैं इन कोस्ट के ऊपर, वहाँ सिंध के अंदर कराची एंड केमारी आर इम्पोर्टेंट कोस्टल एरियाज एंड इट इज आल्सो नोन एज अ फिश हार्बर. इसके साथ ही साथ यहाँ पर मिक्रान कोस्ट के अंदर गवादर और मारा, पसनी, सोमनाई एंड जिवानी. So these are the centers where the marine fishing is practiced. इसी में हम फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ फिशिंग की. मेथड्स के अंदर अगेन वी हैव टू मेथड्स हियर. सबसिस्टेंस मेथड, ठीक है, और सबसिस्टेंस मेथड जो है उसके अंदर वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल नेट्स एंड स्मॉल वुडन बोट्स फॉर फिशिंग पर्पसेस. सेकेंड हमारा जो मेथड है वो है कमर्शियल फिशिंग मेथड, और we are using gill netters and mechanized boats for fishing purposes. So इनके बारे में, इनके methods के हवाले से comparison भी पूछा जा सकता है और separate question भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे types of marine fish catch की. Types of marine fish catch में sharks हैं, ठीक है, croakers हैं, drums हैं, catfish है, हैं और इसके अलावा रेज हैं. वाइल्ड टाइप्स ऑफ इनलैंड फिश कैच के अंदर पल्ला, थल्ला, राहू और ट्राउट जो हैं which are famous one. डी के अंदर हम फिर इसके साथ ही साथ हम फिशिंग सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं. यानी मेन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स के अंदर जो मेन सेंटर्स हैं उनमें मंचर लेक which is in दादू डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध के अंदर है. इसी तरह क्यारी जो के ठट्ठा में है, और हिलाजी यानी वेस्ट ऑफ ठट्ठा के अंदर ये सेंटर्स जो हैं ये वेल नोन इनलैंड फिशिंग सेंटर्स हैं. और मंचर लेक जो है वो बेसिकली आप यहाँ पर रिवर इंडस एट सक्खर, कोटरी एंड ठट्ठा ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फिशिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है. इसी तरह रेजर्वॉयर्स ऑफ मंगला एंड तरबेला के अंदर भी जो इनलैंड फिशिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है. इसके बाद हम गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट एफर्ट्स जो हैं रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ उसमें सबसे पहले यहाँ पर फिश मार्केटिंग एंड देन नंबर 2 एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. अब when we are talking these two subtopics, we are discussing on its impact on local level as well as on international level. Then we will discuss fish farming and environment. Fish farming affects our environment as well. इसलिए हम इसके effects related to ecosystem और साथ ही साथ केमिकल पोल्यूशन की भी बात करते हैं, और इस हवाले से हमारे से अलहदा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री. प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम जो नजर आता है वो वाटर पोल्यूशन है, एंड देन ओवर फिशिंग, राइट. इसके साथ ही साथ
इट इज अ थ्रेट फॉर मैंग्रोव्स एज वेल। मैंग्रोव्स जो हैं ये वो फॉरेस्ट हैं जो कि आपको कोस्टल एरिया में मिलते हैं, as well as the fishing industry is facing lack of financial resources. इसके बाद at the end of this chapter you will discuss sustainable fisheries, यानी possibilities and constraints की बात करते हैं, and 6 mark question जो है वो usually इसके ऊपर पूछा जाता है सस्टेनेबल फिशरीज के हवाले से, जो कि आपका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है। यूनिट नंबर 6 के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की, ठीक है। तो मैं आपसे अपनी न्यू स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगी यूनिट नंबर 7 के हवाले से। अभी यूनिट नंबर 8 को मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपसे यूनिट नंबर 6 की के बाद 7 को शेयर करूंगी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी, यूनिट नंबर 7 आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये है आपकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर का चैप्टर है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली हर पेपर के में जो क्वेश्चन आता है, इफ यू सी लास्ट 10 इयर्स पेपर पास पेपर्स को आप लिखेंगे तो उसमें हमेशा 25 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये चैप्टर बहुत लेंथी भी है, इसलिए इसको मैंने दो उसमें सीरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले मैं आपसे बात करूंगी इसके बारे में एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी के अंदर सिस्टम के जो आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे आपको के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। When we will talk about a system, it means that we are analyzing the inputs, processes and output. तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम क्या है, यानी उसमें कौन से इनपुट यूज होते हैं। इनपुट को वी आर फर्दर सब डिवाइडिंग अंडर नेचुरल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। अब नेचुरल इनपुट्स क्या है? लैंड, सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं विच नेचर प्रोवाइडिंग अस इज रिलेटेड टू नेचुरल इनपुट्स, और जिसमें ह्यूमन एफर्ट जो है वो ऐड हो गई है, जैसे कि कैपिटल, लेबर, इरिगेशन और मशीन्स लाइक दिस। सो ऑल दीज आर ह्यूमन इनपुट्स। नंबर 2 सिस्टम के अंदर सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है प्रोसेसेस, यानी प्रोसेसेस क्या है कि वो एक्टिविटीज जिनसे गुजरने के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है उसको हम प्रोसेसेस कहते हैं, लाइक फ्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजिंग या हार्वेस्टिंग। ये सारी चीजें जो हैं इट कम्स अंडर प्रोसेस। लास्ट के अंदर थर्ड जो है वो है आउटपुट, यानी फाइनल जो हमारी इन दोनों चीजों को मुकम्मल कर, इन दोनों प्रोसेसेस और इनपुट के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो है किसी भी चीज की जो भी चीज हम जिस पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी आर कल्टीवेटिंग व्हीट और राइस और शुगर केन, जो भी हम कर रहे हैं उसकी फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो आती है, यानी क्रॉप की सूरत में लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, दीज आर आउटपुट। After that, after the completion of discussion as a system, we will discuss types of farming. कि हमारे मुल्क के अंदर फार्मिंग जो है वो किन तरीकों से हो रही है। उसमें दो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, यानी दो टाइप्स हम यूज करते हैं। एक है स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड नंबर 2 है कैश क्रॉप फार्मिंग। स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो हमारा
किसी भी फार्मर के पास एरिया जो होता है वो स्मॉल एरिया होता है और इसमें उसका एरिया जो है वो लेस देन 5 हेक्टर होता है, जबकि कैश क्रॉप फार्मिंग अगर कोई एरिया 5 हेक्टर से ज्यादा हो जाता है तो देन इट कम्स अंडर कैश क्रॉप फार्मिंग। इसके हवाले से आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है कि इनके दरमियान में क्या कंपैरिजन यानी डिफरेंसेस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम थर्ड टाइप है हमारी यानी फार्मिंग की जो थर्ड टाइप है वो है लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो बेसिकली कैटल फार्मिंग से रिलेट कर रही है और इसको हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यानी सी जो है हमारा सब हेडिंग वो है क्रॉपिंग सीजन्स which are very important कि हम पाकिस्तान के अंदर we have 2 cropping season। एक नंबर 1 जो है we are calling it as a खरीफ crop या खरीफ crop, नंबर 2 is रबी crop। अब ये कौन से टाइम के अंदर जो है जो चीजें जो है हम कल्टीवेट करते हैं वो खरीफ क्रॉप या खरीफ क्रॉप कहलाती हैं। इट इज सोन इन अप्रैल टू जून, यानी इसका मतलब ये है कि समर सीजन के अंदर, जबकि रबी क्रॉप्स जो हैं वो सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर यानी विंटर सीजन के अंदर। इसको आप अगर याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि खारिफ जो कि के से स्टार्ट होता है तो अल्फाबेटिकली जो के है वो पहले आता है, तो समर सीजन्स के अंदर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं, जबकि रबी यानी आर जो है वो अल्फाबेटिकली आपको बाद में आता है, तो ये आपका विंटर सीजन के अंदर होती है। इस तरह लर्निंग जो है वो आप थोड़ी सी चीजों को अपने तरीके से याद रखने के तरीके से आप कर सकते हैं। देन जो समर सीजन के अंदर हम सो करते हैं क्रॉप को, वी हैव टू हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर, यानी विंटर के अंदर हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, और ये जो जिसको हम विंटर में सो करेंगे उसको हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम समर्स के अंदर हार्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खारिफ क्रॉप के अंदर जो है वो कौन सी क्रॉप आती हैं। उनमें है जो नंबर 1 तो वीट है, नंबर 2 शुगर केन है, नंबर 3 मिलेट एंड मेज है, और नंबर 4 के अंदर कॉटन है। जबकि रबी क्रॉप्स के अंदर जो क्रॉप्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, वो आपकी शामिल होगी वीट। अगेन वीट को इसलिए हमने इस दोनों के अंदर शामिल किया है कि वीट जो है वो आप ड्यूरिंग 1 ईयर हम 2 टाइम्स जो है उसको सो भी करते हैं और कल्टीवेट हार्वेस्ट भी करते हैं। देन बार्ले, ग्राम्स एंड ऑयल सीड्स जो हैं ये हमारी जो है वो रबी क्रॉप्स के अंदर शामिल होती हैं। इसके बाद हम जब भी किसी क्रॉप को पढ़ेंगे जो हमारी कैश क्रॉप भी है, उसका कल्टीवेशन प्रोसेस एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि हम सोइंग, इसके साथ साथ प्रेपरेशन ऑफ लैंड सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद सोइंग आता है, फिर उसके बाद इरिगेशन आता है, फर्टिलाइजिंग आता है, और फिर लास्ट के अंदर हार्वेस्टिंग आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था। तो हम जो 5 कैश क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे उसमें हमने ये सारी चीजें जो हैं इस पे फोकस करना है, क्योंकि इस तरह से एग्जाम क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। सॉरी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो नेचुरल फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप, जिसके अंदर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं, और सॉइल की बात करते हैं। इसका मतलब all natural factors are included in geographical factors. फिर then we will discuss the HYVs. HYVs stands for high yielding variety seeds, right? और high yielding variety seeds जो है वो wheat में जैसे कि देसी variety है या मैक्सी पाक है, और इसी तरह राइस के अंदर बासमती है, कॉटन के अंदर नायाब 78, सरमस्त, कलंदरी और CIM 70 और पाक अपलैंड है।
सो इनके नेम भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लाइव स्टॉक, नेक्स्ट के अंदर जो हम लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है इट इज प्रैक्टिस 3 वेज, यानी नोमैडिक वे, ट्रांसह्यूमेंस और सेटल्ड वे से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ट्रांसह्यूमेंस की टर्म आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ी होगी, यानी टोपोग्राफिकल फीचर्स के अंदर। सॉरी। इसके बाद हम लाइव स्टॉक फार्मिंग को भी एज अ सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे, यानी सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग के दरमियान जो है वो कंपैरिजन पूछा जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक and at the end problems of livestock would be discussed. इसके साथ ही साथ फूड फार्मिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हमारी फूड फार्मिंग में जो इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं वो हैं डेट्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड आलमंड, एप्पल और एप्रिकॉट। सो इसके हवाले से भी कि कौन से एरिया के अंदर इनको कल्टीवेट किया जाता है और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो इनको हेल्प आउट करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट फार्मिंग। सो इस हवाले से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी चैप्टर को, चूंकि ये एक लेंथी चैप्टर है, मैं इसके आपके साथ नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, जो हमारा पार्ट बी है फर्दर। उसमें पार्ट ई जो है वो है कैटल ब्रीड्स के बारे में, यानी जब हम लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें कैटल ब्रीड्स की भी बात करेंगे। बिकॉज आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब कुर्बानी के जानवर लेने जाते हैं तो कुछ स्पेशल ब्रीड्स होती हैं जिसको हम चाह रहे होते हैं खरीदने के लिए। तो कैटल ब्रीड की जब हम यहाँ बात करते हैं तो इसमें रेड सिंधी जो कि लोअर सिंध के अंदर है, इसी तरह साहिवाल की के कैटल जो हैं, बफलोज जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, थरी की बहुत फेमस हैं, राइट, क्योंकि ये मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मशहूर हैं ये दोनों। यानी जो हम यहाँ जिन ब्रीड्स की बात करें हैं, इस साहिवाल की बफलोज की बात करते हैं या रेड सिंधीज की बफलोज की बात करते हैं, तो ये हमारी मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती हैं। इसके अलावा थरी यानी थरपारकर के अंदर हमारे ड्राफ्ट पावर एनिमल्स होती हैं जो कि हमें कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। यानी जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसके अंदर ट्रैक्टर यूज नहीं होता, बल्कि ड्राफ्ट पावर के थ्रू जो है वो लैंड की प्रिपरेशन की जाती है। तो वहां पर ये चीजें, ये जो कैटल्स हैं वो बहुत हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको डिटेल दी हुई है। डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो अभी हमारे डिफरेंट टाइम्स के अंदर, जैसे कि 1959 और 1972 और आफ्टर दैट 1977, सो दीज 3 लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब यहाँ पर इनके जो फीचर्स हैं वो उनमें के बारे में सीलिंग ऑफ ओनरशिप की यहाँ पर बात की हुई है। सीलिंग ऑफ ओनरशिप का मतलब, सीलिंग का मतलब ये है कि आप किसी लैंड की मैक्सिमम जो लिमिट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर देती है। जैसे कि यहाँ बताया है 200 हेक्टर्स ऑफ इरिगेटेड एंड 400 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, यानी इससे ज्यादा जो लैंड होगी वो कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं रख सकेगा, बल्कि जो एक्स्ट्रा लैंड होगी वो गवर्नमेंट की पोजेशंस के अंदर आ जाएगी। इसी तरह कॉम्पनसेशन टू लैंड, यानी जो रेसिपेंट है, जो भी लैंड का ओनर है, उसको टू पे प्राइस इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट स्लैब रेट्स, यानी जो मार्केट के डिफरेंट रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा लैंड गवर्नमेंट उनसे ओन करेगी उसको वो रेसिपेंट को उसको पे कर देगी। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग आ जाता है इसके अंदर, यानी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब लेस देन द मिनिमम साइज कंटिन्यू। अब ये जो सीलिंग ऑफ लैंड है इसके हवाले से या कंसोलिडेशन ऑफ
होल्डिंग के हवाले से यहाँ पर डिफरेंट उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती रही, यानी वो क्लॉजेस चेंज होती गई। 72 के अंदर देखो यहाँ पर 60 हेक्टर जो है वो इरिगेटेड लैंड है और 120 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड है। तो इस तरह से यहाँ पर लैंड की लिमिटेशन जो है वो चेंज होती गई। इसी तरह 77 के अंदर 40 हेक्टर इरिगेटेड है और 80 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड है। फिर कॉम्पनसेशन यहाँ पर फिक्स कर दी गई है, वैल्यू ऑफ ₹30 पर इंडेक्स यूनिट वैल्यू के हिसाब से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिफॉर्म्स जो हैं उनकी बात होगी, यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात होगी, और साथ ही इसके इफेक्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हवाले से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर्स के अंदर टोपोग्राफी, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर और पेस्ट्स एंड डिजीजेस आता है। और उसके बाद आपका ह्यूमन फैक्टर्स हैं। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर जो है वो है इरिगेशन, HYV, साइज ऑफ फार्म, फर्टिलाइजर एंड मैकेनाइजेशन। And then we will talk about marketing and plant protection program, which must be a part of the factors. और लास्ट के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की। इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एम्स हियर। यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट एम्स को लिस्ट किया है कि क्यों रिफॉर्म्स केवल इंट्रोड्यूस करवाई गई। इनका पहला सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव जो था वो तो इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी था। नंबर 2 ये भी कि ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स, और नंबर 3 ये कि प्रोटेक्शन ऑफ टेनेट्स। टेनेट्स का मतलब ये कि वो लोग जो कि उस पे उजरत पे काम करते हैं, यानी जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। रिजल्ट्स की हम बात करेंगे कि रिजल्ट इन रिफॉर्म्स के रिजल्ट जो हैं वो अल्टीमेट हमारे पास जो आए वो हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। और लेकिन इसमें एक चीज जो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो है बिग लैंडलॉर्ड्स मैनिपुलेट द एजेंसीज, यानी उन्होंने उसके अंदर काफी चीजों को खराब मतलब गलत तरीके से यूज करके उसको अपने जो एक्स्ट्रा लैंड था उसको बचा लिया। इसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स जो हैं वो हैं टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंक्लूड होगा, जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह मैंने आज आपको जो रिव्यू दिया है वो चैप्टर यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक का रिव्यू जो है वो हमने यहाँ मुकम्मल कर लिया है।